انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ارطغرل ڈرامے کے اہم کردار ابن عربی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں ان کا کیا کردار تھا، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح ابن عربی علم اور روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ ناظرین، شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی ایک ایسے منفرد مصنف تھے۔ انہوں نے 75 برس کی عمر پائی، بطور مصنف 46 برس میں 800 سے زیادہ ضخیم کتابیں تصنیف کی۔ آپ کی صرف ایک کتاب فتوحات مکیہ کے صفحات کی تعداد تقریباً 15,000 تھی۔ اس دوران آپ نے اندلس سے شمالی افریقہ، مصر، عرب، شام، عراق، یروشلم، ترکی تک سفر بھی کیے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دن میں 100 سے زائد صفحات لکھتے ہوں گے۔ ناظرین، ابن عربی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یہ 12ویں صدی کے عبقری شخصیت اور عظیم فلسفی، مفکر اور محقق ہیں۔ عالم اسلام کے چند اہم دانشوران، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیاء میں سے ایک شیخ اکبر ابن عربی ہیں۔ تقریباً 800 کتابوں کے مصنف ابن عربی کو صوفیاء نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے، اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ آل نہیں لگایا جاتا، کیونکہ آپ سے ایک صدی قبل ابن العربی کے نام سے ایک علمی شخصیت امام غزالی کے شاگرد قاضی ابو بکر ابن العربی اشبلیہ ہسپانیہ میں مشہور رہے ہیں۔ دونوں شخصیات میں تمیز کرنے کی خاطر انہیں ابن العربی اور آپ کو ابن عربی لکھا جاتا ہے۔ آپ کو ابن العربی صرف آپ کے لقب محی الدین کے ساتھ ہی لکھا۔ ناظرین، ابن عربی کا پورا نام شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد ابن عربی الاندلسی الحاتمی الطلائی ہے۔ آپ حاتم الطلائی کی نسل سے تھے، جو اپنی سخاوت کے باعث نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا میں آج تک مشہور و معروف ہیں۔ بنی طے ایک قبیلہ تھا۔ حاتم اس قبیلے کا ایک سردار تھا، جس کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا تھا۔ ویسے بھی عربوں میں مہمان نوازی بہت مشہور ہے۔ ان روایات کو عرب جہاں بھی گئے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ حاتم الطلائی کی اولاد میں اسے ایک صوفی منش گرانے نے اندلس میں آ کر رہائش اختیار کر لی تھی۔ ناظرین، ابن عربی کے دادا محمد ادلس کے قضات اور علماء میں سے تھے۔ ابن عربی کے والد علی بن محمد فقہ اور حدیث کے ائمہ اور زہد و تصوف کے بزرگوں میں سے تھے۔ والدہ انصار سے تعلق رکھتی تھی۔ ابن عربی کے ماموں شیخ یحییٰ بن یاغیان اور ابو مسلم الخولانی دمشق کے ایک مشہور ولی اللہ تھے۔ ابن عربی کا صوفی منش گھرانہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ ناظرین، ابن عربی 17 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی میں اندلس یعنی اسپین کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ابن عربی کے ابتدائی تعلیم حسب دستور گھر پر اور دیگر مراحل آپ مرسیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے مجالس میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ تصوف، فقہ اور دیگر مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیاء کی خدمت میں گزرنے میں لگا۔ اشبیلیہ میں آپ 598 ہجری تک رہے۔ اس دوران آپ حصول علم میں ہمہ تن مصروف رہے اور کئی علوم مثلاً قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف نحو، ریاضی، فلسفہ، نجوم، حکمت میں دسترس حاصل کی۔ آپ نے اپنے دور کے نامور اور اعلیٰ مقام اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے علاوہ ابن عربی نے ادب، تاریخ، شاعری اور بعض دیگر علوم و فنون کا اکتساب ابو بکر محمد بن خلف بن صافی لخفی، ابو القاسم عبد الرحمن بن غالب شراط القرطبی، ابو بکر محمد بن احمد بن ابی حمزہ سے کیا۔ حدیث اور دیگر دینی علوم کی تعلیم ابن زرکون انصاری، ابو حافظ ابن جدد، عبد الولید الحضرمی اور عبد المنعم خزرجی وغیرہ سے حاصل کی۔ ابو محمد عبد الحق اشبیلی کی حلقہ درس میں ایک عرصے تک شامل رہے۔ آپ کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، ابن عربی بچپن ہی سے نیک اور صادق القول تھے اور بہت ذہین بھی تھے۔ ان کی ذہانت کا چرچا جلد ہی دور دور تک پھیل گیا تھا اور لوگ اکثر ان کو ملنے آنے لگے تھے۔ ناظرین، ابن عربی کی غیر معمولی صلاحیت اور علم کا چرچا اندلس میں پھیلنا شروع ہوا تو مشہور فلسفر اور قرطبہ کے قاضی القضات ابن رشد نے ابن عربی کے والد، جو ان کے دوست بھی تھے، سے کہا کہ کسی وقت اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجیں۔ ابن الشد ابن عربی سے مل کر بہت متاثر ہوئے۔ ناظرین، ابتدائی عمر میں ابن عربی کا رجحان تصوف و تزکیہ کی جانب نہیں تھا، لیکن اس درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ آپ کے والد وزیر ریاست تھے اور آپ کے خاندان کا شمار ملک کے باوقار لوگوں میں ہوتا تھا۔ اندلس کے صوبہ اشبیلہ کے حاکم کے یہاں شیخ ابن عربی کا اپنے والد کے ساتھ آنا جانا لگتا رہتا تھا۔ حصول علم کے بعد آپ پہلے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت میں بطور فوجی، الجندی اور پھر کاتب سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے۔
जो दीवान सल्तनत का अहम ओहदा था। नाजरीन, इब्ने अरबी के मुर्शिद शेख यूसुफ ने आपकी सिमत नुमाई में अहम किरदार अदा किया। तसूफ में अंदलस के बुजुर्गों और सूफियों से इल्म हासिल करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें मज़ीद इल्म की ज़रूरत है। चुनांचा इब्ने अरबी ने हसूल इल्म की खातिर दूर दराज के सफ़र किए, कई इलाकों में दरस व तदरीस का सिलसिला कायम किया। नाजरीन, इब्ने अरबी ने 590 हिजरी यानी कि 1194 ईस्वी में पहली बार अंदलस के सर ज़मीन से बाहर का सफ़र किया। वो अंदलस से निकल कर मेन शुमाली अफ्रीका पहुँचते थे। यहाँ आपको ऐसे सूफिया की सोहबत मुयसर आई जिन्होंने आपकी रूहानी तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। आपने तूनिस में अबुल कासिम बिन किसी नामी सूफी के किताब खलील नहलेन का दर्स लिया। बाद में आपने इस किताब की शरह पर एक मुस्तकिल रिसाला तसनीफ़ किया। इसी सफ़र के दौरान आपकी मुलाकात अबू मोहम्मद अब्दुल अजीज़ बिन अबू अल बकर कुरैशी अल महदवी के साथ हुई, जिनकी फरमाइश पर आपने अंदलस की सूफिया के तज़क्कुरों पर मुश्तमिल अपनी किताब रूहुल कुद्स लिखी। इस किताब में बचपन सूफिया का तारुफ कराया गया, जिनके साथ आपका राब्ता रहा या जिनके साथ आपका शागिर्दगी का रिश्ता था। नाजरीन, अब आपको ये बताते चलें कि शुमाली अफ्रीका में शेख इब्ने अरबी ने एक खानका कायम की। 2 साल के अरसे में वहाँ इनका एक बड़ा हल्का बन गया। अंदलस के साथ आपका राब्ता बहाल था क्योंकि आपके वालिदैन करीब अजीज़ व अकारिब वहाँ मुस्तकिल रिहाइश पजीर थे। इब्ने अरबी को जल्द ही अंदलस लौटना पड़ा, जिसका सबब आपके वालिद की वफ़ात थी। अंदलस वापसी के रास्ते में इब्ने अरबी मरिया के मकाम पर, जहाँ पर इब्ने अरीफ मुसन्निफ़ महासनुल मुजालिस ने सूफियों के लिए तरबियती दायरा कायम कर रखा था, पहुँचे। यहाँ आपने अपनी किताब मवाकुल नजूम सिर्फ 11 रोज़ के अंदर तसनीफ़ की। यहाँ से आप आबाई वतन मरसिया पहुँचे। वहाँ वालिद की जायदाद को फरोख्त करके आप अशबीलिया पहुंचे और चंद बरस घर वालों के साथ रहे। आप पर घर बार की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। हर तरफ से इब्ने अरबी पर जोर डाला जाने लगा कि वो रियासत की मुलाजमत इख्तियार कर लें, मगर आपने इनकार कर दिया। आप अपनी वालदा और 2 बहनों के साथ फास यानी मराकश आ गए और वहीं अपनी बहनों की शादी की जिम्मेदारी से सुबकदोश हुए और अपनी वालदा की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। चंद साल के बाद इब्ने अरबी की वालदा भी वासिले बहक हो गई। नाजरीन, इसके बाद अपनी देरीना ख्वाहिश मक्का मुकरमा की ज़ियारत के बारे में सोचने लगे। वालदा और बहनों की जिम्मेदारी के सबब इस ख्वाहिश को मुलतवी करते रहे थे। 596 हिजरी यानी कि 1199 ईस्वी में इब्ने अरबी ने अंदलस से मक्का मुकरमा का सफ़र किया। वो बरास्ता बजाया यानी अलजायर, ट्यूनस, मिस्र, अल-कुद्स यानी यरूशलेम से होते हुए मक्का मुकरमा पहुँचे और तकरीबन 2 साल वहाँ क़याम किया। इस दौरान वहाँ की इल्मी और मजहबी हलकों में आपकी वजह से एक गैर मामूली हलचल पैदा हुई। इब्ने अरबी की तस्नीवी सरगर्मियों का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि आपने इस दौरान में अपनी किताब रूहुल कुद्स के मसौदे को मुकम्मल करने के साथ साथ 3 दूसरी किताबें मशकूतुल अनवर, हलियतुल इब्दाल और ताजुर रसाइल तहरीर की। इन्होंने एक मार्का आरा किताब अल फतूहातुल मकिया तसनीफ़ की। ये तसनीफ़ आपने 599 हिजरी में लिखना शुरू की, जिसकी तकमील 28 बरस बाद यानी 627 हिजरी में हुई। ये किताब 37 जिल्दों 560 अबवाब पर मुश्तमिल है। नाजरीन, इब्ने अरबी ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में 800 से ज़ायद किताबें लिख डाली। इस दौरान आपने हजाज से लेकर मराकश, हल्ब और ईरान, इराक से लेकर तुर्की, मिस्र और यरूशलेम तक सफ़र दर सफ़र तलाश हक, रियाजत और तबलीग में वक्त गुजारा। इस दौर में ज़राए इबलाग बहुत महदूद हुए थे और सफ़र दुश्वार गुजार होते थे। इन कठिन मुसाफतों में भी इनका पढ़ने लिखने का सिलसिला जारी रहा। बाज़ जगह आपकी किताबों की तादाद 651 दी गई है, जबकि उस्मानिया की बाइब्लोग्राफी में आपकी 846 किताबों के उन्वान दर्ज किए गए हैं। नाजरीन, आज इब्ने अरबी के 500 से ज़ायद किताबें महफूज हालत में हैं और किताबें भी चंद सफ़ात पर मुश्तमिल किताबचे या फिर रिसाले की तरह नहीं थी। सिर्फ एक अल फतूहातुल मकिया के मजमूई सफ़ात की तादाद 15,000 है। कहा जाता है कि आपके लिखने की रफ्तार फ़ी रोज़ 3 जुज़ यानी पार्ट्स थी। सफ़र या हज़र में भी तसनीफ़ व तालीफ़ का काम जारी रहता। इब्ने अरबी नज़म व नसर पर यकसा दस्तरस रखते थे। जो बात नसर में भी लिखना महाल हो, इसको नज़म में बेतकल्लुफ़ बयान कर देते थे। शहर कहने का मलका फितरी था और अक्सर व बेशतर फिल बदिया इशार कहते थे। अरबी की लुग़त और मुहावरा पर इनको गैर मामूली कुदरत हासिल थी। आपके 5 शेरी मजमूए दीवान भी हैं। नाजरीन,
मशहूर अरब मौरिख इब्न ज़हबी कहते हैं कि इब्न अरबी की जसारत, कुदरत और ज़हानत का कोई जवाब नहीं था। वो जब हमदो सिना में मशगूल होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे इनको अपना भी होश नहीं है। इश्क़ इलाही में सरशार थे, इनमें कई अच्छी सिफ़ात मौजूद थी। उनकी रूहानी तजलियों और कैफियत का कोई ठिकाना ना था। फ़िक्र की गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इन्हें बचपन से ही सच्चे ख्वाब नज़र आते थे। नाजरीन, शेख अकबर ना सिर्फ सच्चे ख्वाब देखते थे बल्कि ख्वाबों की हकीकत और अफादियत के भी कायल थे। इनका कौल है कि इंसान जैसा होता है वैसे ही इसके ख्वाब होते हैं। अगर कोई ख्वाब में भी हाजिर दिमाग रहना सीख ले तो इसमें बेपनाह कुव्वत पैदा हो जाती है। ख्वाबों के ज़मन में इनके कई वाक़ियात मिलते हैं। शेख खुद लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं सख्त बीमार हो गया, ज़िंदगी की उम्मीद ही ना रही। लोग मेरी शदीद बेहोशी देखकर गिरिया वज़ारी करने लगे। इन्हें महसूस हुआ कि मैं दार फ़ानी से रुखसत हो चुका हूँ। मैंने इस हालत में ख्वाब देखा कि कुछ वहशतनाक चेहरे वाले मेरे करीब आकर मुझे अजियत देना चाह रहे हैं। करीब ही एक हसीन व जमील अतर बेश शख्स मुझे इनके नरगे से बचा रहा है। बिला आखिर इसके आगे वहशतनाक चेहरे वाले मांद पड़ गए और मगलूब हो गए। होश में आने के बाद मैंने देखा कि वालिद गिरामी सरहाने बैठे सोगवार आंखों और अशबार पलकों के साथ सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा था सब अर्ज कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि मेरी सेहत व आफियत वालिद की दुआओं और सूरत यासीन की बरकत व नतीजा है। नाजरीन, इब्न अरबी की ज़ौजा मरियम बिनत मोहम्मद बिन अब्दून अंदलिस के एक अमीर की बेटी थी। वो एक मुतक़ी खातून थी। इन्होंने रूहानियत के कई मदराज इब्न अरबी की हमराबी से तय किए। इन्होंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जिसे इन्होंने कभी ज़िंदगी में ना देखा था। इस शख्स ने पूछा कि क्या आप अत्तरीक तसव्वुफ़ पर चलने की ख्वाहिशमंद हैं। आपने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा करना चाहती हूँ मगर नहीं जानती कि इसे किस तरह इख्तियार करूँ। इस शख्स ने जवाब दिया 5 बातों से, तवक्कुल, यकीन, सब्र, अजीमत और सिद्क के साथ। इब्न अरबी ने अपनी अहलिया के ख्वाब को सुनकर तस्दीक की कि यही सूफिया का रास्ता है। नाजरीन, इब्न अरबी 601 हिजरी में मक्का से रवाना होकर बगदाद, मोसिल, इराक, यरूशलेम और दूसरे शहरों में सफ़र किया। दमिश्क में इनकी मुलाकात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बेटे अल-मुल्क ज़ाहिर से हुई, जिसने आपकी बहुत कदर की। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नवासे अमीर हल्ब अब्दुल अजीज़ के यहाँ भी आपकी बहुत कदर व मंजिलत हुई। नाजरीन, 604 हिजरी में एक मरतबा मक्का में वारिद हुए और 1 साल तक वहाँ पर क़याम किया। इसके बाद आप एशिया को चले गए, जहाँ से 607 हिजरी में कोनिया पहुँचे। कोनिया इस वक्त सल्जूक सल्तनत की राजधानी थी और एक अजीम शहर था। यहाँ पर सुल्तान के काउस ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कोनिया में आपकी आमद मशरकी तसूफ में एक इनकलाब का पेशखीमा बनी, जिसका वसीला आपके शागिर्द और सुतेले बेटे सदरुद्दीन कोनवी बने, जिनकी माँ से आपकी शादी हुई। सदरुद्दीन कोनवी जो आगे चलकर तसूफ के बुजुर्गों में शुमार हुए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के करीबी दोस्तों में से थे। आपने इब्न अरबी की किताब फजूजुल हुक्म पर शरह लिखी। नाजरीन, सदरुद्दीन के ज़ाहिरी और बातनी तरबियत इब्न अरबी ने की। वो कई ज़ुबानों के माहिर और तमाम अलूम में बदूतूला रखते थे। इनकी इल्मी इस्तेदाद का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि जिस ज़माने में सदरुद्दीन ने फतूहात मक्किया का दर्स शुरू किया तो दर्स में हाजिर होने वाले नौजवानों में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसा होनहार तालिब इल्म भी मौजूद था, जिनकी शोर आलिम तसनीफ़ मुसन्निफ़ रूम लाजवाल शोहरत की हामिल है। सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके मुरीदों में थे और बहुत इज्जत करते थे। नाजरीन, अब आपको ये बताते हैं कि क्या इब्न अरबी इर्तगल की मुलाकात हुई थी। इब्न अरबी ने कोनिया में भी क़याम किया। सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन इब्न अरबी का मुहतकिद था। इस दौर में आनातोलिया की सरजमीन पर तुर्कों के एक कबीले काई का सरदार इर्तगल, जिसके तीसरे बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया कायम की, अपने कबीले के लिए एक महजूज और माशी लिहाज से फ़ायदेमंद मकाम पर मुस्तकिल क़याम के लिए जदोजहद में मसरूफ़ था। इब्न अरबी का साल वफ़ात 1240 और उस्मान के वालिद इर्तगल का साल वफ़ात 1280 है। तारीख़ी लिहाज से ये मुमकिन है कि इब्न अरबी और इर्तगल के दरमियान मुलाकातें रही हों और इर्तगल ने इब्न अरबी से रहनुमाई और इनकी दुआएं ली हों। नाजरीन, 1210 के बाद ये वो ज़माना है जिसमें शेख इब्न अरबी कोनिया और एशिया कोचक में तसूफ़ की फ़िक्र व फ़लसफ़ा को आम कर रहे थे। इस दौरान शेख इब्न अरबी का दमिश्क, हल्ब, मोसिल, बगदाद, मक्का और यरूशलेम मुस्तकिल आना जाना लगा हुआ था। इब्न अरबी जिस ज़माने में एशिया कोचक और कोनिया में महूस सफ़र थे, इस ज़माने में अनातोलिया के सरजमीन पर कै कबीला का सरदार इर्तगल भी सलीबों और मंगोलों से लड़ रहा था। इब्न अरबी और इर्तगल गाजी का ज़माना एक है। इस बुनियाद पर मुमकिन है कि इब्न अरबी और इर्तगल की मुलाकात रही हो।
नाजरीन, इस दौरान आपके ताल्लुकात सलाउद्दीन अयूबी के बेटे अल-मलक ज़ाहिर के साथ, जो हल्ब का हाकिम था, दोस्ताना थे। एक वाक़ये से जिसमें आपसे एक शख्स की सज़ाए मौत का माफ़ करने की सिफारिश करते हैं, पता चलता है कि हल्ब का हाकिम इब्ने अरबी की किस कदर इज़्ज़त करदा था। 620 हिजरी में आपने दमुश्क को अपना वतन बनाया। दमुश्क के काजी अल-कफ़ा व शमसुद्दीन अहमद भी इब्ने अरबी की शख्सियत पर परवराना वार जानिसार थे। इन्होंने अपनी बेटी की शादी इब्ने अरबी से कर दी थी। क़याम दमुश्क के दौरान इब्ने अरबी दर्स व तदरीस की और तसनीफ में मसरूफ़ रहते थे। एक अंदाजे के मुताबिक वो रोज़ाना 100 सफ़ात लिखते थे। इब्ने अरबी की तसनीफ़ करदा कई किताबें हवादीस की नज़र होगी। मंदरजा झेल किताबें कुतुब खानों में मिल सकती हैं। फतूकात मक्का 4 जिल्दें, नफसूसुल हुक्म, शजरतुल कौन, मुतालुल अलवारा हीरा, मुशाहिदो इसरार, हलीउल अब्ताल, अफादुत मुतालुल जाफ़र, तफसीर ज़ख़ीर, किताबुल इखलाक, मुहाज़रतुल इब्रार, अज्जिला और महकम, मवाक़िउल जुनूम, अल-मारिफ़ व आलिया अक़द महसर, किताबुल अज़ल, मरातिब वजूद, नक्शुल कसूस, किताब अलहूद, ताजुर रसाइल, इनकुल अकरब और कई एक किताब वगैरह। फतूहात मकिया और नसूसुल हुक्म, ये दोनों किताबें हर दौर में औलियाए वुल्ला और सूफियाए कुराम के दर्स व तदरीस में रही हैं। नाजरीन, हज़रत मुहिउद्दीन अरबी गैर मामूली सलाहियतें और खूबियाँ रखते थे। वो अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम और कैफियत ज़ाहिरी व बातनी के हामिल थे। शेख के तर्ज तहरीर से वाकिफ़ ना होने की वजह से लोगों में गलतफहमियाँ हैं। बाज़ नादान यूरोप ज़दा इब्ने अरबी के फ़लसफ़े या हिकमत को अफलातून का फ़लसफ़ा समझते हैं, मगर इनकी समझ में नहीं आता कि तमाम कुतुब जुनैदुल बगदादी, बाबज़ीद बसाती, सहेलुल तशरी और बुज़ुर्गान इस्लाम के अक़वाल आयात कुरान मजीद और हदीस शरीफ के हवालों के साथ लिखी गई हैं। इब्ने अरबी की कुतुब में मगरबी फ़लसफ़ा का कहीं ज़िक्र नहीं है। हज़रत इब्ने अरबी तारीख़ इस्लाम में एक ऐसे मुनफरिद मुसन्निफ हैं जिनकी मुखालफत और मुवाफ़क़त में बड़े बड़े लोगों ने सदियों से हिस्सा लिया और आज भी इनकी तफसीलात मोहर्ज़ बहस हैं। शेख ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मुखालफत की परवाह ना की और ना ही किसी से मुनाजरा किया है, बल्कि खामोशी और मुनानत से लोगों की बातों को सुनना और अपना इल्मी काम जारी रखना है। नाजरीन, इब्ने अरबी ने दमुश्क में 22 रबीउस्सानी 638 हिजरी बमुताबिक 1240 ईस्वी को वफ़ात पाई। आपका मकबरा दमुश्क मुल्क शाम के शुमाल में जबलुल कासियून के पहलू मोहल्ला सालिया में है। इस जगह को अब मोहल्ला इब्ने अरबी भी कहा जाता है। शेख अकबर की वफ़ात के तकरीबन निस्फ सदी बाद इनकी तसनीफ़ मशरक़ी ममालिक में गर्दिश करने लग गई थी। अब्दुल वहाब शोरानी जैसे जय्यद आलिम ने इब्ने अरबी पर इब्तदाई काम करके आने वालों के लिए रास्ता हमार किया। मगरबी ममालिक में इब्ने अरबी के कसीरुल बगदाद अफकार का मुवाजना किया गया। 13वीं सदवीं ईस्वी में जर्मनी में इब्ने अरबी पर संजीदा काम शुरू हो गया था, लेकिन मगरब के दीगर इलाकों को ये इल्मी ख़जाना बहुत बाद में नज़र आना शुरू हुआ। अलबत्ता गुज़िश्ता 50-60 बरसों में मगरब के दीदा और मुस्तशरिकीन और मशरकी उलमा व हुक्मा इब्ने अरबी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हुए और उनकी सहर अंगेज शख्सियत, नेज़ो अफ़कार और रोज़ नज़रियात पर तहक़ीक़ व तनकीद के मुतालात पेश किए। नाज़रीन, मगरबी मुफ़क्किरीन ने इंसान और कायनात के बाहिमी रब्त, माबतुल तबियाती और इल्हातियती मसाइल के तबीर व तोज़ी, फ़ल्कियात, फ़ितरी साइंस के कई नज़रियात इब्ने अरबी के फ़लसफ़े से आख़िज़ किए। इब्ने अरबी के मुताबिक तकवीनियात खुदा की पहचान का इल्म है, कायनात खुदा की सिफ़ात का मज़हर है। नाजरीन, इब्ने अरबी का नज़रिया इल्म मुरवज्जे फ़लसफ़ानिया रिवायात से अलग ख़वास का हामिल है। आपने इल्म के इखलाकी व इल्मी जिहाद पर ज़ोर दिया। इब्ने अरबी के लिए इल्म लामहदूद वसअत का मालिक है। आपके ख्याल में कोई इंसान इल्म की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। इब्ने अरबी का कौल है कि इंसान इल्म का हसूल बुनियादी तौर पर 2 तरीक़ों से करता है, एक अपने वजदान से और दूसरा हवा से खमसा या गौर व फिक्र से। इसमें कुछ शक नहीं कि इब्ने अरबी इस्लामी फ़िक्र का अजीम सरमाया हैं। उनकी इल्मी विरासत की हिफाजत और तसनीफ़ी कदर व कीमत का तयन करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।